Hello students. In the first part of this chapter, we have discussed different types of nutrition. Okay. Today we will discuss autotrophic nutrition, which is photosynthesis. This photosynthesis is performed by all the green plants. I am saying green plants means green word is very important. Why? Because this green color comes because of a pigment which is green in color and it is known as chlorophyll. Okay, usually it is present in the green parts of plant, and mainly, as we know, the leaves are green, so approximately 95% of the plant parts, which is leaves, okay, 95% of chlorophyll present in leaves. Okay, now so let us discuss what is this photosynthesis. Listen, the whole you can say universe is based on the energy transformation. Okay, means one form of energy will convert into another form of energy. We need energy, we get this energy by food. Okay, means this food is a chemical energy. By using this chemical energy, we can perform so many life processes. Okay, so the whole story is of energy. Clear? Now what is actually, and the second thing we also know that sun is the ultimate source of energy on earth. अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन है? सन. क्लियर? ओके. सो अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को कैसे लिंक करते हैं. Sun rays, it will provide solar energy. Okay, this solar energy is in form of heat energy, light energy, but here we will use this light energy. Okay, so the solar energy in form of light energy will convert into the chemical energy by forming some chemicals. Okay, and this process of converting light energy into the chemical energy by using some raw materials in presence of chlorophyll is known as photosynthesis. ये तो एक definition थी. Now थोड़ा और easy करते हैं इसको. Easy कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि पहले वाली definition आपको समझनी नहीं है. You are in 7th standard, so you should. आप 5th standard के level का नहीं समझेंगे. आपको हर वर्ड समझना है. ठीक? ओके, सो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. दूसरा, यू कैन सी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, okay, will form glucose by the process of photosynthesis. मतलब क्या हुआ? Inorganic material, inorganic raw material will convert into the organic material और organic product. ये दूसरी definition हो गई. By the process of, और दूसरी information हो गई, by the process of photosynthesis, inorganic raw material will convert into a organic product. Okay? अच्छा, अब देखते हैं एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं. बिकॉज ये जो पूरी सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्ट, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है बनने का, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की. ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है. क्लियर? सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो फोटो. ओके, सिंथेसिस मीन्स बनना. सो वी कॉल द प्रोसेस दिस एज फोटोसिंथेसिस. क्लियर? तो इतना हमें समझ में आ गया. अब हम देखते हैं एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती क्या है और कैसे होती है. क्या तो हमने लगभग देख लिया. नाउ लेट अस सी ये कैसे होती है. लिसन, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं. क्लियर? वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, प्लांट इनका यूज करता है. ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम सनलाइट एंड having chlorophyll, in presence of chlorophyll, which is a green pigment present in green leaves स्पेशली. एंड जब आप थोड़ा और सीनियर हो गए तो सेल होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट.
ऑर्गेनेली होती है उस ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इनकी प्रेजेंस में किसकी किसकी, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके एक प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। क्लियर? एट द सेम टाइम इट विल रिलीज ऑक्सीजन। ठीक, it will use carbon dioxide and it will release oxygen. This oxygen is not the product, it is the byproduct, मतलब साइड से निकलने वाला प्रोडक्ट है। This oxygen will not going to use by plants, so we call it byproduct। ठीक है, अब आपको पता चला प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट वो है जिसका हम यूज करते हैं बनाने के बाद, बाई प्रोडक्ट क्या है? साथ में जो निकला है जिसका हमें यूज नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? रॉ मटेरियल आपको क्लियर है? रॉ मटेरियल कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? अब ये रॉ मटेरियल कैसे एब्जॉर्ब करता है? इंपॉर्टेंट चीज है, वी शुड नो दिस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, एयर में प्रेजेंट रहती है और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स पे होते हैं कुछ स्मॉल टाइनी पोर्स। So many pores are present and these pores are known as stomata, and these stomata help in exchange of gases. Exchange of gases मैं बोल रही हूँ मतलब 3 प्रोसेस में हेल्प करते हैं, 3 जगह। पहला, फोटोसिंथेसिस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक, रेस्पिरेशन के टाइम ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और तीसरा, आप थोड़ा सीनियर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, ट्रांसपिरेशन शो करते हैं, मतलब वाटर को गैस फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो ये 3 बहुत ही वाइटल फंक्शन है स्टोमेटा के। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप केवल बता सकते हो इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड photosynthesis, all these processes need stomata for gases exchange. Clear? Acha, then the second comes from where this water and mineral be absorbed by plants. What happens? plants में होते हैं pores, sorry, plants में होते हैं vessels, मतलब बहुत पतली, very thin thread like you can say, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। और वो नीचे रूट्स में जाकर के और भी बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। लाइक जैसे आप कभी दिया जलाते हैं, वो कैसे ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, समथिंग लाइक इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके की प्रोसेस होती है, जिसे हम कैपिलरिटी एक्शन कहते हैं। और भी बहुत से एक्शंस इन्वॉल्व होंगे बट इट इज़ द बेसिक वन। और वो जो रूट हेयर्स होती हैं वो सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और धीरे धीरे कंडक्टिंग वेसल्स के थ्रू ऊपर पहुंचाती है। मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल बी कंडक्टेड। क्लियर? यू कैन जस्ट सी, इफ यू सी योर पेज नंबर 3 यू विल फाइंड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें बिल्कुल रूट हेयर्स बने हुए जो कि सॉयल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर धीरे धीरे कंडक्ट करेंगे थ्रू द कंडक्टिंग वेसल्स। क्लियर? इसके बाद आपका जो क्लोरोफिल के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी हैं। सनलाइट, आई हैव टोल्ड यू दिस। अच्छा, क्लोरोफिल करता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट पॉइंट। क्लोरोफिल करता क्या है? दिस क्लोरोफिल ट्रैप्स, ये पकड़ता है किसको? जो सनलाइट आ रही है, मीन्स द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय दिस क्लोरोफिल। और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके वो इस सिचुएशन में लाता है कि ये chemical energy में convert हो सके। Means what is the function of chlorophyll? Chlorophyll help to trap the light energy for the process of photosynthesis. Okay, so this chlorophyll, जिसके पास chlorophyll नहीं होगा photosynthesis perform नहीं कर पाएगा। So it was the story। अब एक question आता है, बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स डार्क पर्पल होती हैं या समथिंग येलोइश होती है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? यस, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कैसे? अगर वो नेचुरल कलर है तो, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल बट इट इज जस्ट सप्रेस्ड बाय अदर कलर। होता है ना, डार्क कलर जो होता है लाइट कलर को सप्रेस कर देता है, तो भी वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। इफ यू सी, आपकी बुक में कुछ डू यू नो में कुछ एग्जाम्पल्स बने हुए हैं, जैसे पर्पल कलर होता है रेड कैबेज का, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो इट वाज ऑल अबाउट फॉर फोटोसिंथेसिस एट योर लेवल।
We'll discuss next part of this chapter in next class. Okay, thank you class.